Try to understand the concepts. These are the concepts that, right, I didn't take at that point of time. So we have to understand the cost concept. What do you mean by, right, cost? Cost is the amount that producer pays to various factors of production who contributes in the manufacturing. Example, we purchase raw material. For that purpose, we have to make the payment. The laborers contribute in the manufacturing. हम उनको wages pay करते हैं. We borrow capital and for that purpose we pay interest on capital. Right now, an entrepreneur provides his skill. He takes risk, right? And to him we pay some profits. So all this put together, right, is cost. So when there is a production activity, the various factors of production take active part in the production. Obviously, without the participation of all factors of production, production cannot be possible. ये तो सबको पता है, ठीक है? So production के लिए factors of production, inputs very important, ठीक है? And try to understand, तो उनका क्या reward होता है उसमें? What is reward? वो कितना कमाएंगे, right? हम उनको कितना distribute करते हैं? They contribute in the production. For that purpose, we distribute some amount to them. That is called as cost. That is called as cost in the economics. So try to understand. So it includes everything. For land, the rent. For land as a factor of production, rent include किया जाता है. For labor, we include wages. For capital, we include interest on capital. And the last one, the entrepreneurs, we include the profit. And all this put together is a cost. Cost. तो अब क्या लिखा है देखो. When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, capital, etc. Factors of production in simple words. He has to make the payments for such inputs. Because those inputs, those factors of production do not work free of cost. We have to make the payment to them. हमें उनको जो पेमेंट करना है उसको बोला जाएगा कॉस्ट. तो आगे बढ़ो, क्या लिखा है. The expenditure incurred on these inputs is known as cost of production. Payments made to various factors of production for their contribution, right? Payments made, ठीक है, payments made to various factors of production लिख लेना यहाँ पे, right? Definition of cost. Definition of cost लिख लेना everyone. Payments made to various factors of production for their contribution in the production activity. Cost is the various payments made to various or payments made to various factors of production for their contribution in the production activity. It also includes profit. It also, cost also includes profit. Normal profit होता है. The concept of the normal profit is not in your syllabus, so I won't discuss normal profit. It is more in the CA foundation. Normal profit कैसे ऐड होता है, what is abnormal profit, what is losses, ये सब market equilibrium में ज्यादा आप सीखोगे, which is not in your syllabus. Even the normal profit, owner is also factor of production ना, right? He is an entrepreneur, तो he provides his skills, तो वो भी उसकी भी जो profit रहेगा ना, we will recover it from the customer. So in economics, cost is a broader concept. It's not accounting cost. इकोनॉमिक में जो कॉस्ट होती है वो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट होती है वो अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होती जो P&L में आती है, बुक्स में आती है, वो वाली नहीं रहती. इट इज मोर देन द अकाउंटिंग कॉस्ट. इट इज अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देयर आर वेरियस कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट जो आपके इसमें भी नहीं है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. इट इज नॉट द नैरो कंसेप्ट विच इज इन द अकाउंट्स. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट पेमेंट ऑफ द वेजेस, पेमेंट ऑफ द रेंट, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हैं. सो द कॉस्ट अंडर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड देयर इज द मोर लाइक लॉजिकल कंसेप्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट इज अ नैरोअर कंसेप्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट.
सो जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं इन इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं, ना कि अकाउंटिंग कॉस्ट. ठीक है. सो we also recover normal profit from the customer. Normal profit is included in the cost. So right, therefore right, it is, what is cost, क्या लिखा हमने? Cost is payments to FOP, factors of production, for their contribution in production. For their contribution in production. ठीक है, आगे. For your information, this cost is called as economic cost. Which is different from accounting cost. Different बोलने से it is wider, broader than it is a broader concept than accounting cost. It also considers time value. Accounting cost does not consider time value. ये time value भी समझता है. मतलब अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, you are given your time, वो टाइम की भी वैल्यू वो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करनी चाहिए. ठीक है. कॉस्ट विच इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन अकाउंटिंग कॉस्ट. एग्जाम्पल कोई प्रोफेशनल कोर्स पास होते हो एट द एज ऑफ 21. ठीक है, एट द एज ऑफ 21, एंड इफ यू पास ए प्रोफेशनल कोर्स एट द एज ऑफ 50, तो आप दोनों में आप प्रोफेशनल तो बन रहे हो, बट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 19 ईयर्स. 19 नहीं, 29 ईयर्स. जो 21st ईयर में आप जो प्रोफेशनल बनोगे, वही अगर 50th ईयर में बन रहे हो, तो बीच आप तो प्रोफेशनल तो बन रहे हो, यू आर गेटिंग द डिग्री. हाउएवर दिस इज टाइम वैल्यू. समझ में आ रहा है? तो आप बोलते हैं उसकी जगह मैं कुछ दूसरा करता तो अच्छा रहता. तो यार आप बोल रहे हो कुछ उससे भी बेटर रहता, बिकॉज यू हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम. सो वो भी कहां पे फैक्टरिंग होना चाहिए ना. समझ में आ रहा है? सो ये चीजें होती है इकोनॉमिक्स में. वी कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल. नेक्स्ट, आगे. आगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द नीड ऑफ आउटपुट. अगर इफ यू आर टू इंक्रीज द आउटपुट, लॉजिकल, यू नीड मोर ऑफ इनपुट. If you are to increase the output, you need more of input, means you need more of factors of production. Obviously your cost of production increases. So cost of production and the output is directly related. If output increases, cost of production also increases. If output decreases, cost of production also decreases. There are three types of the cost, which are as follows. First is total cost. Total cost is the total cost of टोटल आउटपुट. आपने जितना आउटपुट बनाया है, वो आउटपुट बनाने की टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the firm on the factors of production required for the production of goods and services. Whatever is your actual output, वो actual output बनाने के लिए जो total expenditure हुआ है, that expenditure is called as total cost. Total cost is sum of total fixed cost and total variable cost, right? So always remember, जब हम cost देखते हैं, some costs are fixed, like rent is a fixed, whether you use or you do not use. Even during lockdown, the offices, the shops, the factories were closed. Still they have to pay the rent. So output नहीं, फिर भी आपको पे करना पड़ रहा है. सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ आपको पे करनी पड़ती है, वेदर दे एक्चुअली वर्क और दे डू नॉट वर्क. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जो मिनिमम है उतना तो पे करना पड़ता है.
ट्राई टू अंडरस्टैंड. ब्रॉडबैंड का आपको जितना मिनिमम उतना पे करना पड़ता है. सो सम कॉस्ट आर फिक्स्ड, वेदर यू प्रोड्यूस और यू डू नॉट प्रोड्यूस, यू हैव टू पे फॉर इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो आपको पे ही करना पड़ेगा ना. इफ यू आर बोरोड द फंड्स, वो फंड्स आप एक्चुअली यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका फर्क नहीं पड़ता, बट एज द टाइम चेंज passes you have to pay the interest. Try to understand. So this is very important. There is a fixed cost, right? Some cost out of the total cost, always remember total cost में से के दो components होते हैं. One is sum of the cost is fixed cost. कॉस्ट दो में डिवाइड की जाती है. कोई भी कॉस्ट दो में डिवाइड होती है. एक है फिक्स कॉस्ट. इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो. रेंट, एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ. सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ आपको उनको तो देना पड़ेगा ना. आगे सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ध्यान देना. नेक्स्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ. आगे इट इज फिक्स्ड. दिस कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द आउटपुट. आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको पे करना है. लाइक ड्यूरिंग लॉकडाउन, मैंने बेस्ट एग्जांपल लॉकडाउन का दे सकते हैं, राइट? लाइक आपने सुना होगा बहुत सारे जिम बंद हो गए. क्यों? बिकॉज उनको रेंट पे करना था. और एक रेंट ऑलमोस्ट एक जिम का रेंट 1,50,000 होता है. अगर लोग आने वाले नहीं, कुछ रेवेन्यू नहीं होने वाला, तो कॉस्ट कहां से बेयर करेंगे? बंद कर दिया उन लोगों ने. देयर आर मेनी शॉप्स व्हिच गोस क्लोज्ड बिकॉज दे कैन नॉट पे द फिक्स कॉस्ट. नहीं, अगर वो सपोज बंद नहीं करते, अगर वो रेंट पे ही लेके रखते हैं, तो उनको फिक्स कॉस्ट देनी है, रेंट देना है. आप तब नहीं बोल सकते कि लॉकडाउन है, लोग नहीं आ रहे, ये नहीं. आपको तो रेंट देना है. आपने वो रेंट पे लिया है. एग्जाम्पल, आपने लोन लिया, बैंक ने किधर छोड़ा लोगों को? हाँ, गवर्नमेंट बोलती है कि लोन इंटरेस्ट ये करेंगे वो करेंगे, बैंक नहीं सुनती. गवर्नमेंट का काम बोलना है, बैंक का काम रिकवर करना है. एज सिंपल एज दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट कितने भी बेनिफिट्स दे, वो बैंक वाले ने एक्सेप्ट तो करने चाहिए. बैंक वाले पीछे लगते हैं, तो बैंक वाले तो इंटरेस्ट रिकवर कर रहे हैं ना. चलो बैंक वाले बोले हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, बट लगाते रहे ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्री में तो नहीं हो रहा है ना. तो इफ यू हैव बोरोड द फंड्स, you have to pay the interest. So some costs are permanent cost. Try to understand. Some costs are permanent cost. And some cost, that is fixed cost, constant cost, unescapable cost, uncontrollable cost. अलग अलग नाम है. And some costs are variable cost. हाँ, वो चेंज होते हैं as output changes. Variable cost. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल. अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो ही आप परचेस करोगे. लाइक आपको पता है अप्रैल मई जून बंद रहने वाला है, तो यू डिडंट परचेस द रॉ मटेरियल, तो आपको कोई खर्चा नहीं रहेगा. इफ द आउटपुट इज जीरो, दिस कॉस्ट इज आल्सो जीरो. एग्जाम्पल लेबर, कैजुअल लेबर या जस्ट लेबर, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना यूज करोगे उतने इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जितना यूज करोगे उतना ज्यादा रहेगा. ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सम कॉस्ट चेंजेस विद आउटपुट. चेंजेस, दे वेरी विद द आउटपुट. इफ आउटपुट इंक्रीजेस, those cost also increases. If output decreases, those cost also decreases. They vary with the output, इसलिए उनको बोला था variable cost. And some costs do not vary with the output. They are fixed, they are constant, irrespective of the level of output. आप प्रोड्यूस करो या ना करो. एग्जाम्पल, आप ट्रिप पे जाते हो, आपने एक गाड़ी हायर की है एंड उसका रेंट सपोज 2000 है, तो आप 1 किलोमीटर जाओगे तो भी आपको उतना देना है, आप ट्रिप पूरी करके आओगे तो भी उतना देना है. सो दैट 2000 हैज बिकम फिक्स्ड. टोल नाका वगैरह वो वेरिएबल हो गए.
वो वेरिएबल हो गया। क्यों? अगर आप वो रूट लेते हो, उस रूट से जाते हो तो आपको टोल नाका देना है, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट। आप कोई दूसरा रूट लेते हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट आपका जो रेंट फिक्स हुआ है वो तो फिक्स्ड ही है। So some costs are fixed, some costs are variable. Fixed costs do not change with the level of the output. Variable cost changes with the level of output. ठीक है, अब क्या लिखा है देखो। So total cost is equal to TFC, total fixed cost plus total variable cost. ये दोनों मिला के क्या बनता है हमारा total cost. Some costs are fixed, some costs are variable, and put together is the total cost. What is the total fixed cost? Total fixed cost are those expenses of production which are incurred on fixed factors such as land, right? Land के लिए rent, you have to pay rent, machinery, depreciation is another example. Another good example is the depreciation is a fixed cost. आपको देना ही पड़ता है, right? Depreciation, you have to provide for the depreciation. So cost related to fixed factors. Cost related to fixed factors is a fixed cost. Cost related to variable factors is a variable cost. या उससे भी better होता है the cost which do not change with the level of output is fixed cost, and cost which changes with the level of output. तो लिख लेना कहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेना व्हाट इज, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ना किधर है, हाँ, डू नॉट चेंज विथ चेंज इन द आउटपुट। ठीक है, what is variable cost? Total variable cost are those costs of the production which are incurred on variable factors such as labor, raw material, power, etc. Cost which changes with change in the output, changes with changes in the output. So simple words में fixed factors की जो कॉस्ट रहती है वो फिक्स कॉस्ट, दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर्स की जो कॉस्ट रहेगी वो वेरिएबल कॉस्ट रहेगी विच चेंजेस विद द चेंजेस इन आउटपुट। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इस टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या मिलता है? एसी, एवरेज कॉस्ट। या जनरली कोई एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं बोलता, डायरेक्टली बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, एसी। हम इसको हर जगह पे क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, ध्यान देना। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज एवरेज कॉस्ट is equal to total fixed cost divided by quantity is average fixed cost. Total variable cost divided by quantity is the average variable cost, and therefore average cost is average fixed cost plus average variable cost. ठीक है, per unit, average मतलब per unit fixed cost, per unit total cost is per unit fixed cost plus per unit variable cost. So उन्होंने लिखा होगा एवरेज कॉस्ट, लिखा है देखो क्या लिखा है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट मतलब एक यूनिट की डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करोगे। सपोज योर फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख, योर वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000, योर टोटल कॉस्ट इज 1,60,000 and the unit produced is example 20,000. So to produce 20,000 units, you have to incur total cost of 1,60,000. So if you find out per unit, you can say 8 per unit, rupees 8 per unit is a
average cost. 1 lakh fixed cost, 60,000 variable cost. Total cost is 1 lakh 60 to produce 20,000 units. 1 lakh 60 to produce 20,000 यूनिट, मतलब पर यूनिट कितना आ गया 8 पर यूनिट. पर यूनिट कितना गया 8 पर यूनिट. इसको बोला जाता है एवरेज कॉस्ट. सो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर यूनिट लिखने का, टोटल कॉस्ट पर यूनिट is average cost per unit of output. So total cost divided by total quantity is average cost. TC divided by TQ. For example, if a total cost of production of 40 units is 800, then average cost is 800 divided by 40, 20 per unit. Then comes marginal cost. Margin मतलब change in the total cost. Change in total cost is marginal cost. What is the marginal utility? What is marginal utility? Change in the total utility is a marginal utility. Or when you consume additional unit, additional satisfaction is marginal utility. Similarly, अब हम प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या बोलेंगे? When you produce one extra unit, when you produce one extra unit, additional cost is marginal cost. Marginal मतलब additional, एक additional, मार्जिनरी एक यूनिट कंज्यूम, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम कर रहा है उसका सेटिस्फेक्शन मार्जिनल सेटिस्फेक्शन. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट. मार्जिनल कॉस्ट इज नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट. So it is marginal cost of n units is equal to total cost of n units minus total cost of n minus 1 units. कहां पे तो लिख लेना ही है. एक सेकंड, कहां पे हम एक पॉइंट बना सकते हैं क्या? आई विल एक सेकंड, लिख लेना है इनमें. ध्यान देना. Total utility is a total satisfaction from consumption of all units. Total cost, TC, total cost, is the total cost of production of all output. सिंपल वर्ड्स में जितने यूनिट्स आपने बने उसकी टोटल कॉस्ट, विच इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. टोटल रेवेन्यू is the total sales, right, from sale of all units. If you sell the total units, कितना पैसा मिलेगा? सेल्स, ट्रेडिंग का जो सेल्स होता है, इट इज अ टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी from consumption of one additional unit. Marginal cost is the additional cost from production of one additional unit. एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो कितना कॉस्ट लगेगा? मार्जिनल रेवेन्यू is additional revenue from sale of
वन एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करोगे तो टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज होगा? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन प्रीवियस यूनिट. Marginal of n unit is marginal utility of n units is nth unit is total utility of n units minus total utility of n minus 1. अगर आपको 10th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढनी है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 9 यूनिट्स. सो 9 एंड 10, 9 यूनिट्स कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी है, 10 यूनिट्स कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी है, तो दोनों का डिफरेंस एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट of n units is total cost of n units minus total cost of previous unit n minus 1. Marginal revenue of nth unit is total revenue of n unit minus total revenue of n minus 1. ये फॉर्मूला सबका मतलब एक ही. मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या टोटल सेटिस्फैक्शन में कितना चेंज होगा. चेंज इन द टोटल सेटिस्फैक्शन इज मार्जिनल सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल. चेंज इन द टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ वन एडिशनल यूनिट, चेंज इन द टोटल सेटिस्फैक्शन और चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम इज अ मार्जिनल. Change in the total cost because of one extra unit produced is a marginal cost. Change in the total revenue because of one unit extra sold is marginal revenue. फॉर्मूला हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही है. जहां पे यूटिलिटी वहां पे यूटिलिटी लिखा है, जहां पे कॉस्ट है वहां पे कॉस्ट लिखा है, जहां पे रेवेन्यू है वहां पे रेवेन्यू लिखा है. एक एक्स्ट्रा करने से टोटल में जो चेंज आता है वो होता है मार्जिनल. यूटिलिटी में कंजम्पशन करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी. कॉस्ट में एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट. एंड मार्जिनल रेवेन्यू एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने से टोटल सेल्स में, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. आगे ठीक है, तो उन्होंने वही लिखा होगा. लेट मी टेक दैट पॉइंट. सो मार्जिनल कॉस्ट लिखा है उन्होंने, ठीक है. सो मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट. एग्जांपल में दिया है, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स इज 200 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज 250. अगर 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट 200 है, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करते 250 है, तो 5th यूनिट की वजह से राइट your total cost is increased by 50. 200 has become 250 because of 5th unit. So 5th unit की marginal cost 50 rupees है. आगे यहां पे लिखा है, if the firm produces 600 units right of a commodity in a day, एक दिन में 600 units बना रहे and incurs total cost of 30,000. what is the average cost बोलो रे? एक दिन में जो 600 यूनिट्स बनाते हैं उसकी कॉस्ट 30,000 है, तो आप मुझे बोलो कितनी एवरेज कॉस्ट है? व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? बोलो जल्दी, सिंपल है, उसमें क्या है? व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? 50 रुपीज. परफेक्ट. सो लिखो, इट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 600. $50 पर यूनिट. आगे रेवेन्यू कंसेप्ट, इट इज अ टोटल सेल प्रोसीड्स. ठीक है, द टर्म रेवेन्यू refers to the receipts obtained by the firm from the sale of certain quantities of the commodity at a given price in the market. Sales. The concept of the total revenue, ऐसे ही, what is the total revenue? Total revenue is a unit sold multiplied by price. Suppose हमने 1 लाख यूनिट सेल किए and the price is 10, so can I say your total revenue is 10 lakhs? Yes. ठीक है, price multiplied by quantity is the total revenue. Price multiplied by quantity sold. The total revenue is the total sale proceeds. Total sale proceeds of a firm by selling a commodity at a given price. It is the total income of the firm. Total revenue is calculated as follows.
प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एग्जांपल नीचे दिया देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इफ द फर्म सेल 15 यूनिट्स एट 200 ईच, एक यूनिट की प्राइस 200 है, 15 यूनिट सेल को है, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 200, योर टोटल सेल्स इज 3000 और टोटल रेवेन्यू इज 3000। देन व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? जैसे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज प्रोड्यूस, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी अगर करते हो तो आपको सॉरी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करते हो तो आपको एवरेज कॉस्ट मिलती है। वैसे अगर टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड करोगे, टोटल यूनिट सोल्ड करोगे, आपको एवरेज रेवेन्यू मिलेगा, जिसको प्राइस बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? प्राइस। एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एवरेज कॉस्ट में मैंने क्या बोला है, इट इज अ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। जितना आपने बनाया उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, इट इज एवरेज कॉस्ट। एंड टोटल एवरेज रेवेन्यू में बोलता हूं, इट इज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड। एग्जाम्पल, हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आउटपुट प्रोड्यूस्ड is 1000 units. Total cost of this 10,000 is 1 lakh. Output sold 8,000 units. ठीक है, टोटल रेवेन्यू is 1,20,000 rupees. So therefore average cost is 1 lakh of 1 lakh is the total cost of 10,000 units. Average cost is rupees 10 per unit. एक यूनिट बनाने की ऑन एन एवरेज कॉस्ट 10 रुपए। टोटल रेवेन्यू इज 1,20,000 when 8,000 units are sold. So therefore what is average revenue? Total revenue divided by total units sold, 10,000 नहीं 8,000 sold। एवरेज कॉस्ट के लिए यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करो, एवरेज रेवेन्यू के लिए यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करो। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, इट इज ₹50। सो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 15 रुपए, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस पर यूनिट। प्राइस, एवरेज रेवेन्यू को दूसरा नाम है प्राइस। डिमांड कर को एवरेज रेवेन्यू कर भी बोला जाता है, वही रीजन है, बिकॉज हम प्राइस की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? प्राइस। किसकी बात करते हैं? प्राइस। सो प्राइस ही मतलब एवरेज रेवेन्यू, प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट दैट इज प्राइस। सो 10 रुपए की कमोडिटी एक और आपने 15 में सेल किया तो 5 रुपीज पर यूनिट इज अ प्रॉफिट। 8,000 के पीछे आपने 5 यूनिट सेल किए तो आपका प्रॉफिट 40,000 होगा। आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका प्रॉफिट होगा जीपी। आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 ईच, कॉस्ट ना 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, आपका प्रॉफिट रहेगा 40,000। ठीक है, आगे वही लिखा है, एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड। एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एंड एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। वहां पे प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे सेल। रेवेन्यू में सेल बोलना है, यूनिट सोल्ड, एंड कॉस्ट में यूनिट्स प्रोड्यूस बोलना है। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। दिस इज टोटल क्वांटिटी सोल्ड है, दिस इज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, एक सेकंड, दिस इज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट, उसके बाद सो टोटल रेवेन्यू आ गया, एवरेज रेवेन्यू आ गया। एग्जांपल, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ 50 यूनिट्स इज 3,000, 3,000 यूनिट सेल करने से 3,000 मिल गए तो एक यूनिट की प्राइस कितनी आ गई? 3,000 डिवाइडेड बाय 15, 200 पर यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू
because of one additional unit sold. Change in the total revenue because of one unit sold, one additional unit sold. Marginal revenue is the net addition made to total revenue by selling an extra unit of commodity. Marginal revenue of nth unit is the total revenue of n unit minus total revenue of n minus 1 units. For example, if previous total revenue from sale of 20 tables is 4000, जब आपने 20 tables sale किए, quantity sold is 20, your total revenue is 4000. When you sold 21 tables, your total revenue increased to 4200. So change in the total revenue is 200 because of one extra unit sold. So 21st unit ka marginal revenue is 200. Then is rupees 200. Marginal revenue is never written as per table, ऐसे नहीं होता, ठीक है, just 200 लिखना चाहिए. यहाँ पे लिखा है if the firm sells for 400 units at rupees 10, calculate total revenue, average revenue. Total revenue कितना आएगा? 400 multiply by 10, 4000 is the total revenue, and average revenue is nothing but the price, 10 रुपए. Average revenue लिख लेना कहाँ पे? Average revenue is also called as price. Price of commodity. So total cost, average cost, and marginal cost. Total cost, average cost, and marginal cost. Total revenue, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. किसी के डाउट से तब तक ओके, ठीक है. सो ये कंसेप्ट बाकी थी. टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है. हमने लेट मी चेक. अच्छा, इसके बाकी मैंने सब कवर किया था. ऐसे यहाँ पे कुछ मिस हुआ है ऐसे नहीं है. ओके, एक सेकंड. एक सेकंड. सो हमारा यहां तक हुआ, राइट? लेट मी चेक. This is entire microeconomics, right? On coming Sunday, you have a 80 mark test on the microeconomics. You have 80 mark test on the microeconomics. ठीक है? एग्जाम फॉर्मेट में रहेगा, लाइक फर्स्ट 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 1, एक राइट डिस्टिंग्विश रहेगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स रहेगा, गिव रीजनिंग रहेगा, एंड लास्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेगा. आई विल शेयर द फॉर्मेट इफ रिक्वायर्ड. आप कोई भी प्रीवियस बोर्ड का पेपर देख लेना, उसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है? देन
with options obviously. Then the next 6 to 10 chapters, the next 5 chapters are related to, right, macroeconomics. And these are really good chapters. These are really good chapters. ठीक है? The pattern has changed. If your new pattern, share with me, no issues. ठीक है? अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो आप मुझे शेयर कर देना, नो इश्यूज. आगे. बट फर्स्ट 5 चैप्टर्स पे, मतलब एक्चुअली वो 6 चैप्टर है, 3A and 3B पकड़ के टोटल वो 6 चैप्टर्स है. ठीक है? You have 80 marks test. In detail टेस्ट रहेगी on coming Sunday. So read it. Preferably I will always suggest you to go through, right? अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ये बाकी रहेगा ना हमारा, ये वाला चैप्टर बाकी है. इसमें मैंने ये रखा है, इसके पीछे मेरा एक सेकंड लॉजिक ये था कि मैं दोनों साथ में कवर करने वाला था. ये चैप्टर मैं सबसे एंड में करता हूं बिकॉज इसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों है, हमें टूल्स वगैरह समझने ना, इसलिए ये जनरली मैं एंड में करता हूं. ठीक है? सो एक्सेप्ट चैप्टर 1, वो क्या समरी है. चैप्टर 1 इज एक्चुअली द समरी. चैप्टर 1 इज द समरी. ठीक है? ये जो चैप्टर्स है, these are the most scoring chapters. तो इन पे आपको 80 मार्क्स के टेस्ट रहेगी. संडे के पहले ले लूंगा मैं, लाइक सैटरडे पकड़ के चलो, संडे को लेक्चर रहेगा और फिर वी विल स्टार्टिंग विद द इंडेक्स नंबर्स. ठीक है? इंडेक्स नंबर एंड नेशनल इनकम दोनों में से जो मुझे अच्छा लगता है आई विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. मे बी इट कैन बी नेशनल इनकम. आई विल स्टार्ट विद द नेशनल इनकम. ठीक है? बिकॉज वो अच्छा चैप्टर है और वो 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है? Anything else? Anyone has doubt that I have to cover? ठीक है? हमने ठीक से किया, हर कंसेप्ट समझ के किया, ऐसे नहीं कि हमने उड़ाया खाली, राइट? और जो मैं लिख के देता हूँ या यहाँ पे या अलग से, राइट, वो पॉइंट्स भी याद रखते जाओ. दोज आर गुड पॉइंट्स समझने के लिए. एग्जांपल्स बेसिकली, लाइक जो ये नोटिंग्स हम लिखते हैं आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में लिखते चलो साथ साथ में. ठीक है? और यू शुड यूज द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, ऑलवेज रिमेंबर. बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड में अगर आपको 90 प्लस चाहिए तो यू हैव टू यूज टेक्स्ट बुक लैंग्वेज. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव. आप कितना भी अच्छा लिखो बट अगर टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स नहीं है, टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज नहीं है तो नहीं मिलते, ये समझ लेना. बिकॉज वो उनके हिसाब से चेक करेंगे. इसलिए आपने देखा होगा वो लातूर वगैरह वहां पे जो जहाँ पे वो लातूर पैटर्न होता है सब, राइट, रिमेंबर करते हैं लोग वगैरह, तो ये टेक्स्ट बुक याद रखते हैं. क्यों? बिकॉज टेक्स्ट बुक से मार्क्स आते हैं. पुणे में वैसे पैटर्न नहीं है, पुणे में बच्चे याद नहीं रखते. बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, तो यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे कि आपको टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है. ठीक है? क्वेश्चंस बिलो टेक्स्ट बुक आर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, बिकॉज उनका ही प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा हमेशा. ठीक है? सो मुझे ये लास्ट पॉइंट कवर करना था क्योंकि वो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, मैंने बोला था बाद में ले लूंगा. सो फ्रॉम द नेक्स्ट संडे वी विल स्टार्ट विद द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड यू विल लर्न मेनी थिंग्स. ठीक है? इन दैट. अच्छा, ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज सेशन. Yeah, I will end today's session. Thank you.